हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप सो यू ऑल आर कीपिंग वेल। मुझे आशा है आप सभी ठीक हो, अपने अपने घरों में और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे हो। Having said so, let me tell you all first the topic of this particular video on Wednesday. This is a special video that is going to be made for you people on special request by some people who wanted to know कि सर टीचिंग इंडस्ट्री में अगर एकेडमिक फील्ड में हमें एंट्री लेना है या टीचर बनना है या फैकल्टी और प्रोफेसर, व्हाट इज द प्रोसीजर और व्हाट आर द क्राइटेरियाज दैट आर टू बी फुलफिल्ड। सो आई थिंक सो ये रिक्वेस्ट इसलिए आया बिकॉज ऑन दिस जॉब प्रोवाइडिंग चैनल और जॉब रेफरेंस प्रोवाइडिंग चैनल they know that I am a faculty of an institute of Mumbai and thereby maybe पहले ये कह दूं कि जॉब सिनारियो दोस्तों स्लाइड डाउन चल रहा है। कुछ कंपनीज बंद हो रहे हैं या टेम्पररीली शट हो रहे हैं, तो वैकेंसीज या जॉब ओपनिंग्स थोड़े कम हो गए। बट जैसा हमेशा मैं कहता हूं, हम हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट विल कम इन द मार्केट एंड देयरफॉर ऑन दिस वेडनेसडे वीडियो, very much uncut and unedited, I would like to announce that by the next week we will be coming up with mind-boggling job opportunities for you, which will be quite interesting, exciting, work from home job opportunities, part-time, full-time and lot more. So stay tuned to the channel. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और बेल आइकॉन क्लिक जरूर करो, बिकॉज आई वॉन्ट कि जैसे ही वीडियो रिलीज करूं आपको पहले इंटीमेशन जाए एंड यू कैन अप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आई होप सो लॉकडाउन में ओपन अप वेरी सून, स्लोली बाय स्लोली, एंड वो अपॉर्चुनिटीज दूर नहीं है। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट द टीचिंग इंडस्ट्री। Firstly, today's topic on special request is quite unique, that was asked me to record and send, but I would do it because some people are actually looking or aspiring to get into this particular. Firstly, let me tell you all that the entire world of teaching, it may start with a lady or a gents taking home tuitions or being a part of a small coaching institute or big classes, or it may be that a teacher of a municipality school, a government school, or maybe a private school, CBSE, ICSC, or Maharashtra board, or any such state boards, or apart from that, a teacher of or a faculty of a junior college, degree college, post graduation, university and lot more. So ये दुनिया होती है, ट्यूशन से शुरुआत करके यूनिवर्सिटी लेवल तक एंड फाइनली डिग्रीज पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको बताऊंगा कि कौन से डिग्रीज आप करके या कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या एग्जाम देके आप टीचिंग फील्ड में एंटर हो सकते हो। बट बिफोर दैट आई विल टेल यू अ बेसिक थिंग दैट इफ यू आर पैशनेट इनफ टू गेट इनटू टीचिंग, अगर टीचिंग आपका पैशन है, आपको लगता है कि मैं इसी के लिए बनी हूं या बना हूं या मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज फाइनली ये एक सामाजिक काम भी है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द नोबल प्रोफेशन एंड देयर बाय आपका एक रोल, जब हम ये क्रेडिट लेते हैं नोबल प्रोफेशन का, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप इस पर्टिकुलर रोल को अच्छे से निभाएं। So don't just get into teaching to get job or for the sake of getting a job or a security, but get into it only if you are ready to serve this particular industry in this way. Don't take me wrong, सारे इंडस्ट्रीज की यही रिक्वायरमेंट होती है, बट टीचिंग की थोड़ी ज्यादा, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट teachers give rise to the other professions, whether it is pharmaceutical, engineer and lot more that we have in this universe. So firstly, there are levels, as I have said. If you are passionate enough into teaching and you find that there is something that you can do for this particular industry or academic field or for the system to bring a change in the society, then start with your first step, either by taking some part-time tuitions or getting into classes, or try practicing the presentation skill, that the way you can explain the best to the students at the level you are trying for. First ये चीज है। फिर तो है एंट्रेंस, उस पे आ जाते हैं कि आफ्टर योर 10th 12th or while doing your graduation, obviously graduation is must with B.Ed if you want to get into junior college level teaching or school level teaching. If you want to get into degree college level teaching, तो M.Com or MA in economics or MSc etc., MSc IT etc., or any master's degree is must to teach in degree college, even MBA or even CA, CS etc. will also do. Apart from this, there are entrance exams, but ये degrees जो मैंने कहा, B.Ed, M.Com, MBA, MPhil, MSc IT, MSc and lot more, MA in economics or MA in any other field will get you an eligibility criteria to teach into at degree level. Also at post graduation level, you should have these degrees plus possibly certain number of years of experience and PhD
जो अल्टीमेट लेवल ऑफ एकेडमिक्स होता है, दैट इज यू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री और आपके नाम के पहले DR डॉक्टर आ जाता है. ओके, सो यू बिकम एन एक्सपर्ट in a particular field, writing thesis and concepts for people to refer it. The next I would like to highlight is कुछ entrance exams होते हैं जो आपको गवर्नमेंट के पे स्केल में ले आता है और आपको सैलरी हाइक देता है. ये तो थे कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस या स्कूल्स में भी नौकरी दिला देंगे, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द पे स्केल्स दैट गवर्नमेंट, जो सरकार प्रोवाइड करती है, तो पहले तो आपको टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल लेवल पे क्लियर कर लेंगे, जूनियर कॉलेज लेवल पे वेल एंड गुड. देन कम सेट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है. आप जो स्टेट में हो आप उसके हिसाब से क्राइटेरिया, जैसे महाराष्ट्र में है सेट एग्जाम, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, क्लियर इट, देन यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रूवल इन द यूनिवर्सिटी. देन है नेट, जो नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर द फैकल्टीज. एंड फाइनली कम्स पेट, विच इज एमफिल PhD रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम. सो आई नो इतने सारी चीजें या एलिजिबिलिटी एंड एग्जाम्स या डिग्री सुनने के बाद आपको लगता होगा अगर मैंने ये कर भी लिया और मैं टीचिंग में फिट नहीं बैठा तो क्या, फिर वापस कम बैक एंड देन गोइंग टू सम अदर इंडस्ट्री. सो डू वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम डूइंग सच मास्टर्स और गेटिंग इनटू सम मास्टर्स डिग्री व्हाइल स्टडिंग, स्टार्ट टेकिंग सम ट्यूशंस एज आई सेड, जस्ट सी वेदर यू कैन डू इट वेल, बिकॉज काफी चीजें मायने रखेंगे ये नोबल प्रोफेशन में. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू समवेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग हिज और हर करियर. So you have to notice that thing in yourself, that are you that responsible enough to do that, या क्या वो आपके अंदर है कि you are actually ready to devote yourself for their career or for their knowledge. Delivery is must, presentation is must. It's not that just that ki how you speak. It's also about how students get you or they understand you well. At their level you need to get down and make them understand the concepts. जो थियरी होते हैं, जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके या सोच पाए कम से कम, वहां पे यू हैव वन हाफ द बैटल. अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीइंग हम्बल, कर्टियस, पोलाइट एंड डिसिप्लिन. पहले हम्बल पोलाइटनेस पे आ जाते, क्योंकि जब तक एक टीचर एरोगेंट रहेंगे, गुस्सेल रहेंगे, हमेशा डांटेंगे पीटेंगे, आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द क्लासरूम भी अगर यही व्यवहार रह गया, सो स्टूडेंट्स देख के चीजों को सीखते हैं और ग्रास्प करते हैं. उनका ग्रास्पिंग पावर सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनका माइंड रॉ होता है, अब तक उन्होंने लाइफ देखा नहीं है, तो वो जो देखते हैं माता पिता में, टीचर्स में, वो तुरंत पकड़ लेते हैं. सो आई डोंट फील अ टीचर ऑलवेज हैज टू बी एरोगेंट एंड रूड. यस, अ टीचर हैज टू बी स्ट्रिक्ट विद डिसिप्लिन जब पढ़ाई करवा के लेने की बात आ जाती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अ टीचर हैज टू बी वेरी वेल टू डू विद हिज और हर लैंग्वेज, पोलाइटनेस, काइंडनेस, हम्बल. बिकॉज एक समय था जब मैं सोचता हूं कि गुरुजी, गुरुदेव माना जाता था, और माना जाता था कि चरण छू के ही टीचर्स का एग्जाम देने जाना चाहिए. आज भी है ये रीति रिवाज, ये कल्चर हमारे समाज में, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों चला जाता है? बिकॉज इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते, और उस वजह से स्टूडेंट्स के माइंड पे भी एक असर पड़ता है कि शायद टीचर्स ऐसे ही है. तो ऐसा नहीं है. सो इफ यू आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू टीचिंग फील्ड्स, ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. आई वोंट से दैट ये चीजें ही है. मेरे से बहुत बड़े बड़े महारथी है ये इंडस्ट्री में, जो काफी अच्छे पोजीशन पे भी है, हमसे भी आगे है. सो विद ड्यू रेस्पेक्ट टू सच पीपल, आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. And whatever I have learned in this 10 years of teaching experience in degree and post graduation colleges, and तकरीबन 15-17 साल का एक्सपीरियंस हो गया अगर मैं ट्यूशंस, प्राइवेट क्लासेस को पकड़ के बात करूं तो. सो whatever I know, I'm sharing. Yes, and finally a teacher has to be an actor somewhere, an entertainer. Don't take me wrong in this case, entertainer in regards not in regards to dancing or singing etc. But चीजों को ऐसे मोल्ड करके बताए कि स्टूडेंट्स को वो थियरी और बोरिंग ना लगे, क्योंकि रीडिंग धीरे धीरे जमाने के लिए बोरिंग होता जा रहा है, नहीं होना चाहिए, बट उनके लिए एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाए. एंड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है उससे चीजों को जोड़ के उनको बताइए. योर डिलीवरी शुड बी पावरफुल, इम्पैक्टफुल एंड शुड क्रिएट एन इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कि दे एक्चुअली जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाए, उनके माइंड में जो चीज वो करना नहीं चाहते थे या करने का मन नहीं कर रहा था, वो अच्छे और प्रोडक्टिव चीज लाइफ में कर पाए. अ प्रोफेसर इज ऑल्सो, अ प्रोफेसर ऑफ फैकल्टी और अ टीचर इज ऑल्सो बाउंडेड विथ लॉट्स ऑफ वर्क, लाइक ऑल द एडमिन वर्क, समटाइम्स लाइक रिपोर्ट मेकिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप, फंक्शंस, एनुअल फंक्शंस,
fests and lot more from school level to degree college level to PG level. So also I would say टीचर्स का काम इतना easy नहीं है जैसा काफ़ी लोग सोचते हैं कि टीचिंग जॉब इज क्वाइट इजी, जाके सिर्फ लेक्चर देना होता है और आना होता है. नो, या सम पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग. नो, इट इज नॉट दैट इजी जॉब, बिकॉज ऑल द रिलेटेड वर्क ऑफ अ स्टूडेंट और इन एकेडमिक फील्ड बहुत सारे होते हैं दोस्तों. एक बड़ा लिस्ट है जो होता है एंड वो सारे काम आपके जिम्मेदारी के क्षेत्र में आ जाते हैं. इन योर परव्यू इट कम्स, इन योर फील्ड इट कम्स, इट इज इंक्लूसिव एंड ये सब आप अगर करने के लिए रेडी हो तो हियर गोज. एज अ टीचर ये सारे चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा टू गेट इनटू द फील्ड. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लाइक ऑलवेज सेड, you have to be ready to be there on the side of the teachers when it comes to being into foundation, being professional enough, being systematic, and have carry that maturity in your personality, because as I have always said, people look at you as their idol. Students will look at you as an inspiration. तो वो चेंज आपको लाना है अगर आप ये इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आउट ऑफ द वे जाके समटाइम्स इफ यू कैन हेल्प स्टूडेंट्स, दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्री, बट नॉट क्रॉसिंग सर्टेन लिमिट्स वेर इन एक दायरा हम पार करें, बट टिल सर्टेन एक्सटेंट ऑलवेज यस, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स मे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. दैट शुड नॉट हैपन, बट in a professional way you can always help the students, because that's what our culture teaches and that's what students will expect from you, that a lecture with good feedback, with interesting facts and figures about life, not biased. You have to be neutral enough in your life to deliver things to the students. उनको दोनों फेस बताइए लाइफ का, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो दोनों उनको बताइए and make them ready for the future of India, because they will be the bright future और career फॉर इंडिया जो वो कैरी करेंगे फ्यूचर में, और फ्यूचर को हम खराब करने का या नष्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते. सो विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, आई होप सो दिस वाज अ कन्विंसिंग वीडियो दैट विल हेल्प यू आउट टू डिसाइड whether to get into teaching field, how to get into teaching field, and what are the things that you can accomplish. Again, I would say whatever idea I had, I have shared here. Get in touch with your parents, with the teachers who are besides you, yeah, close by, and you will get lot more tips on how to become an efficient teacher and do something for this particular society in this noble profession. See you soon with such educative and career related videos on Wednesday, and very soon on Sunday by next week I will come out with lot more job openings that will be suiting to your career, your requirements and needs. Do share this video if you have liked it with lot many aspirants or people who are aspiring to get into teaching field, whether at school, college level, degree level and university level, whatever, how much ever possible I have shared. Take care of yourself and contribute from your end whatever possible to the society. Namaste, Sat Sri Akal और आदाब दोस्तों.